Okay, so all of you see on the screen. It is visible to all of you? Yes, sir. Okay, good. So last class we have discussed that what is Python, okay, and what is print statement, and what is comment, and ओके ये सब किया था कल ने। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था इनपुट का, है ना, हाउ टू टेक इनपुट, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर, रिमेंबर? Yes, sir. Okay, suppose you want to add two numbers, suppose you want to add two numbers, then you have, and you want to ask the number from the user, then you have to take the input function, okay. Okay, so input function is used to collect data from the user. Remember this word. Questions आएंगे, अगर आएंगे तो ऐसे आएंगे, which function is used to collect the data or take the data from the user. Okay, so the answer is input function. Clear है? To collect the data from the user at the time of execution, input function is used. While using the input function, the data type of executed input is required to mention so that machine does not interpret the received data if an incorrect input. Okay. So simple thing is there. You want to take that input, then what you have to do? You have to use the input function. है ना? You want to see the example? I will show you an example here. You can see here. See. याद है या याद नहीं है? याद है? Number one, just a small example I'm going to show you. Okay, number one equal to input. Okay, enter number. Okay, enter number to go. See 40 and number 2 is equal to input. Enter second number. Enter second number. Okay, 70. Okay, tell me. The last class I told you that you can use with the new file. New file में क्या हो रहा था? पहले you have to open the new file. You have to write the lines of codes and then you have to save it. But here you can see here what is going happening? In cell में क्या हो रहा है? जैसे ही आप प्रोग्राम का लाइन दिख रहे हो क्या हो रहा है? उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है? Okay. So suppose you want to add two numbers s equal to, you have to use in integer n1, okay, plus integer n2, okay, press print function I am going to use, print s, okay, enter. Got it? Okay, now you see going to new file. See, going to new file here. Okay, now I will write here, कॉपी किया, है ना, इसको ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग, इंटर नंबर, है ना, नंबर 2 इनपुट किया, कॉपी, सी here, paste, okay, enter, then x equal to copy, okay, control B, okay, and then print s, copy, okay, okay. So tell me the difference between the this one and that one, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए मुझे, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप व्हेन यू रिटर्न हेयर नंबर वन इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर, आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया ना। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही आप एग्जीक्यूट कर रहे थे तो वहाँ पे रिजल्ट आ रहा था।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाइल करेगा, वहां पे क्या हो रहा था, इंटरप्रेट हो रहा था, लाइन बाय लाइन रिजल्ट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के लिए क्या करना होगा हमें, वी हैव टू सेव इट, है ना। पहले क्या करना होगा, सेव करना होगा। सो सपोज PROGRAM प्रोग्राम 1, ओके, सेव करेंगे, यस। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन, रन। ये देखिए इंटर नंबर अभी 40, ओके, इंटर नंबर 70, ओके, नाउ द रिजल्ट इज 110। So this is the difference between the interactive mode and the compile mode. You can say that in यहाँ जो हो रहा है, इंटरप्रेटर इज देयर एंड देयर इज ए कंपाइलर। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम सेम है, आउटपुट सेम है, बट लिखने का तरीका और जो रिजल्ट है आपका अलग अलग है। एक में क्या हो रहा है, वहीं पर तुरंत रिजल्ट आ रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, पहले उसको सेव कर रहे हैं, फिर उसको हम लोग रन करा रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई पहले? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड, ये बात समझ में आई। अभी हम देखते हैं कि इनपुट से हमने क्या किया, इनपुट से हमने डेटा को मंगवाया, है ना, यूजर से डेटा लिया। दैट्स व्हाई इनपुट फंक्शन इज यूज। एंड रिमेंबर ऑलवेज, see here, input function, see here, input function always take the value in a string, string value लेता है ना, string, string value को वो input लेता है, ठीक है। इसीलिए string value को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर फंक्शन लगाया, सी int लिखा, int लिखा। इससे क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो था, जो हमारा वर्ड में जो हम लोग करते हैं, जो वर्ड में जो लिया उसको क्या किया, वो नंबर में उसको कन्वर्ट किया। कौन किया कन्वर्ट? इंटीजर फंक्शन कन्वर्ट किया। रिमेंबर दिस, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द यस। int। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल, एंड ये आपका पहले ही क्लास में करवाया था मैंने, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। देखिए इनपुट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड कैन पास इट ऑन द पाइथन script for the further processing, okay। And see, python accept the input to be a string data type, always remember, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। python क्या करता है, जो भी डेटा लेता है ना वो string में ही लेता है। इसीलिए क्या करना होता है, यहाँ पे इंटीजर लगाना है। अगर आपको यूज करना है एज ए इंटीजर वैल्यू, देन यू हैव टू यूज द int फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। अगर आप int फंक्शन नहीं लिखोगे या फ्लॉट नहीं लिखोगे, फ्लॉट मतलब क्या होता है ये बताता हूँ आपको, देखो। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, सीयर, इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जहां पे फ्रैक्शन नहीं हुआ। अगर फ्रैक्शन हो गया 2.5 हो गया है ना, तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लॉट। क्या बोलेंगे? फ्लॉट, मतलब कि फ्लॉट डेटा टाइप है ये, है ना। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है ना, डेट इज नोन एज इंटीजर। जहां भी फ्रैक्शन आएगा, 2.0, ओके, 2.1, 3.0, जहां भी पॉइंट आएगा, डेट इज नोन एज फ्लॉट वैल्यू, ओके। सो यू अगेन यू सी हियर, अगर हम यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखेंगे, सी है, मैं इंटीजर हटा दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी हटाया था, अभी हटाता हूँ इंटीजर आपके सामने, है ना। इंटीजर हम यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, सेव योर फाइल, ओके, रन योर फाइल, देन यू गेट द इंटर, सपोज 40, नेक्स्ट यू गेट द 70, प्रेस इंटर, you get 40 70, see the result, I told you, see the result here। यस सर। रिजल्ट अभी क्या आ रहा है आपके सामने, 40 70 आ रहा है। मतलब कि 40 प्लस 70 को क्या किया उसने, एक साथ लिख दिया, है ना। तो ये बन गया 40 70, 70 40 बन गया। तो इसको कैनकेटिनेट कर दिया, इट इज नोन एज कैनकेटिनेट फंक्शन स्ट्रिंग में, इसको बोलते हैं कैनकेटिनेट फंक्शन, ओके। गॉट माय पॉइंट्स? Okay, so we have to convert it. What we have to do, we have to use the integer function here। आपको यहाँ पे integer function यहाँ यूज करनी है। Got it? जैसे कि आप integer function आप यहाँ पे यूज करो, या फिर आप वहाँ पे यूज करो, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, int, see, int, okay, now you can put here int,
int. Here also you can put, then your answer will be corrected. See, file, save, run, enter 40, next number 70, 1010. Okay, you can write here float value also. In place of integer you can write float. Okay, here you can write float. Okay, now you save your file, save, run. See, 40, 70. See that difference between the आंसर का डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या आंसर आया 110, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? यस सर। और यहाँ पे क्या है आपका आंसर? यहाँ पे आपका आंसर आया 110.0। यहाँ पे क्या आंसर आया आपका 110। ये आपका हो गया इंटीजर, है ना, INT इंटीजर हमने लिया, इसलिए इसका आया नो पॉइंट इज देयर। यहाँ पे मैंने फ्लॉट लिया था, इसलिए क्या आया 0.0 आया। रिमेंबर? सो दिस इज यस द सर। फ्लॉट वन एंड दैट इज द इंटीजर वन। ओके, गुड। चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये आपका क्लियर हो गया सबका? इनपुट का क्या होता है, फ्लोट इंटीजर क्यों यूज करते हैं, ये लास्ट क्लास का ही पार्ट है, फिर मैंने एक बार डिस्कस किया। चलिए ओके, अभी क्या पढ़ना है हम लोग को? इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड्स मीनिंग? कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक टर्म है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी VBI, है ना। ईच एंड एवरी प्रोग्राम में यूज होता है, चाहे आप C++ पढ़ो, सी पढ़ो, जावा पढ़ो, है ना, PHP पढ़ो, .NET पढ़ो, जो भी पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, वहाँ पे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स आपको आएंगे। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कीवर्ड मतलब क्या हुआ, विच इज प्री डिफाइंड एंड द कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि जिसका वैल्यू पहले से डिफाइंड रहता है कि उसका मतलब क्या होगा, है ना, उसको आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सी हियर, इन पाइथन देयर एग्जिस्ट सम वर्ड्स व्हिच आर प्री डिफाइंड एंड कैरी ए स्पेसिफिक मीनिंग for the machine by default. These words are known as keywords. Keywords cannot be changed at any point in time and should not be used any other way except the default one. Otherwise, they will create confusion and might result in ambiguous output. Okay, so these are the keywords. याद रखना, these are the keywords and very very important keywords are these, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा पूछता है कि कीवर्ड का मतलब क्या है या फिर इनमें से कौन सा कीवर्ड है। आपको चार ऑप्शन देगा और पूछेगा कि विच वन इज द कीवर्ड, यू टेल मी। क्लियर है? अगर somebody will ask you what is keyword, then what is your answer? Your answer is the, simply you will say sir keyword means, और यहाँ पे लिखो क्या, keyword means which is predefined, which is already defined, it has a specific meaning, okay, and we cannot change the value, we cannot change the meaning of that keyword, है ना। और इस कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते हो अपने से। जैसे कि अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, CLASS क्लास लिखा हुआ है ना, दिख रहा नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। देखो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। अब जहां पे ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1, है ना, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, मैंने बताया था आपको, डेट इज द, यहाँ पे क्या है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 एंड S इज द वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ओके, दिस इज द वेरिएबल, करेक्ट है। मतलब कि इसको हम अपने मन से चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं। अभी देखो, अभी मुझे बताने जा रहा था, ये देखो कि अगर हम यहाँ पे नंबर 1 की जगह पे हम लिख देते हैं क्लास, CLA क्लास 1, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 2, CLASS, है ना, क्लास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, चलो TRUE, ट्रू लिख दिया, ठीक है। अभी इसको फाइल को सेव करेंगे, रन कराएंगे। सीधा आंसर क्या बोल रहा है, सीधा आंसर से दैट सिंटेक्स एरर, है ना। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि हम लोग कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल,
है ना, उसको हम एक पर्पस के लिए कीवर्ड को यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसका मीनिंग जो है ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप उसको यूज, है ना, ऐसे नहीं कर सकते हो, एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू, नॉट क्लियर? Yes, sir. सी, तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपको जो आपको याद रखनी है। इट इज विजुअल, false, none, Yes, sir. true, and as. So this is count, number of count, 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 28 29 30 31 32, excuse me, 33. Okay, so these are the keywords, you have to memorize it: false, none, true, and, as, assert, break, plus. Okay, continue, define, del, else if. Just a minute. आप एक somebody please read it now. प्रियंका, read it is this one. एक बार read करो उसको. Yes, sir. All the keywords. Finally, for, from, global, if, import, in, is, Good. non-local, not, or, pass, race, return, try, while, with, yet. Yes, see. अभी आपको एक चीज और ध्यान देना है ना इसमें, कि इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल में लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल। कितने कीवर्ड हैं, काउंट इट नाउ, जो कैपिटल से शुरू हो रहा है? Sir, 3. यस, वेरी गुड सुष्मिता। दैट इज द फॉल्स, पहला हो गया 1। दूसरा कौन सा है? नन। एंड द थर्ड वन इज ट्रू, True. है ना? तो याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अभी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। FALSE, फॉल्स, है ना? फॉल्स इज नॉट इक्वल टू अ स्मॉल फॉल्स, FALSE। बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? Yes, sir. NONE, none. None is not equal to NONE, none. Similarly, TRUE, true, is not equal to TRUE, true. कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड्स, तो कैपिटल TRU जो ट्रू लिखा हुआ है दैट इज द कीवर्ड, और स्मॉल में जो लिखा हुआ है TRUE, ट्रू, दैट इज नॉट द कीवर्ड। गॉट माय पॉइंट्स? Yes, sir. If somebody will say NONE, none is the keyword, of course it is the keyword, but it should be a start from the capital N. Capital NONE is the keyword. So this is very important point. आप अगर देखना चाहो तो आप अभी देख सकते हो, आपके सामने है ना, आप एक बार प्रैक्टिकल कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। कैसे करना है ये देखो, अपना प्रोग्राम में गए, ILD में गए, अभी देखो यहाँ पे जो ट्रू लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, TRUE, ट्रू। अभी देखो दोनों का जो ये दिख रहा है आपको, आपके सामने जो दिख रहा है, कोई अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? टेल मी, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? इसका, ये ट्रू यस और ये सर। ट्रू में क्या अंतर है बताओ? सर वो स्मॉल है और ये कैपिटल है। Yes, correct, very good. And there is a difference between the color also. Color is a difference or not, Trisha? Tell me. यस Yes, sir. है ना? See, so true जो लिखा हुआ है यहाँ पे, in which color it is? फर्स्ट वन इज ब्लैक, द सेकंड वन इज येलो। Yes, yellow, orange, something like that, no? Orange is there, I think. Okay, so whatever is there, so color, see the color. Color is also different. It means that you can TRUE, true, you can use as a variable, but capital TRU you cannot use as a variable. Got it? Yes, sir. Okay, so this is the point in keyword. Remember this thing. Okay, and next point is that identifier.
आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? किसी को आइडेंटिफाई करना, है ना। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट कि किसी का नाम मालूम करना है किसी चीज से, या फिर जो आइडेंटिफाई करता हो, तो किसको आइडेंटिफाई करेगा, है ना? मेमोरी को। अगर सपोज करो सी, आइडेंटिफायर इज एनी वर्ड विच इज वेरिएबल, है ना। वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजर एज पर देयर कन्वीनियंस ऑफ यूज एंड कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ देयर दे वांट्स। सो अभी हमने देखा आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। क्या हुआ? वेरिएबल। जैसे कि आप लिखते हैं ना नंबर, नेम, एस, ये सब क्या हुआ? वेरिएबल है ना। नेम, कुछ भी लिखोगे नेम, है ना। नंबर, नंबर 1, नंबर 2, एस, ट्रू, है ना। विच इज रिटन इन ब्लैक, ऑल आर वेरिएबल। ट्रू, नेम, नंबर 1, एस, नंबर 2, है ना। सो दीज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या हुआ? जिसको लेकर के हम लोग यूज करेंगे, है ना, डेटा के लिए, डेटा रखने के लिए। कहाँ रखने के लिए? मेमोरी में, है ना। कोई भी काम हम लोग कहाँ करते हैं? मेमोरी में करते हैं ना, कंप्यूटर साइंस में, है ना। कि आप इस नंबर में ये नंबर रखो, है ना, नाम में ये नाम रखो, है ना, इसमें ये रखो। सो आइडेंटिफायर मीन्स सिंपली वेरिएबल, एंड वेरिएबल इज यूज टू रिप्रेजेंट मेमोरी, है ना, इन द कंप्यूटर, है ना। मेमोरी का नाम है वो, ठीक है। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप जो प्रोग्रामिंग यूज करना चाहते हो उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द वेरिएबल। क्लियर है? Yes, sir. Okay, now the question is how to write the variable। वेरिएबल को हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। आइडेंटिफायर्स होता है ना, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर्स, है ना। तो वेरिएबल्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। वेरिएबल को लिखने का बहुत सारा तरीका है, याद रखना। तरीका क्या है बताओ? टेल मी। हम्म a lots of rules are there for the writing the variable। you cannot use a space between them, है ना। अगर आपको वेरिएबल लिखना है 10 10 इजकल टू 10, है ना, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 10 इजकल टू 1, फिर यहाँ पे क्या करोगे? स्पेस देके फिर ऐसे लिखोगे। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। अभी देखते हैं, सी, है ना। सपोज हम एक नंबर लेते हैं n1, है ना, n1, ठीक है, इजकल टू 1 स्पेस 0, ठीक है। अभी ओके, ओके, अभी इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सी, रन। अभी क्या है देखो, क्या है अभी आंसर बताओ? टेल मी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? टेल मी एनीवन। आई एम ऑडिबल? त्रिशा, सुष्मिता, Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? सुष्मिता टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. क्या Yes, sir. समझ में There आया? is a syntax error. यस, क्यों सिंटेक्स एरर आ रहा है बताओ मुझे। Sir, we give space between 1 and 0. Yes, why? That's why it means that for writing the variable you cannot give the space. Okay. First point, second point you see, है ना, 1 0. Okay. You can use the point also. There is no problem. So some rules are there. We have to see all the rules. Okay. कैसे लिखते हैं वो उसके लिए क्लास लगेगा, बट डोंट वरी। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग आएंगे वेरिएबल पे, है ना। डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? कि जितने तरह का डेटा है उसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि नंबर टाइप का है, वेरी वर्ड टाइप का है, या फिर फ्रैक्शन टाइप का है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें बहुत सारे डेटा टाइप हैं। पाइथन में डेटा टाइप क्या क्या होते हैं? नंबर, सीक्वेंस, सेट, मैप, इसको डिवाइड किया गया है। तो ये आपका डेटा टाइप है। इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, सेम सेम कर दिया, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल,
and dictionary. Okay, so these are the data types of Python. Remember, it's very very important. If somebody will ask you what are the data types, क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, एंड आपके एग्जाम में भी आ सकता है. ठीक है, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं पाइथन में, तो ये आपके डेटा टाइप्स हैं जिसको मैं देखो ये कर रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, है ना. दीज आर द डेटा टाइप्स, है ना. क्या क्या डेटा टाइप्स है? once again I'm going to say you integer, float, दोनों सेम सेम कर, कम्प्लेक्स. मतलब क्या हुआ इंटीजर, मतलब क्या हुआ जो इंटीजर होता है 1 2 3, है ना. फ्लॉट का मतलब क्या हुआ जहाँ पे दशमलव होता है, 2.15 डेसिमल होता है, 3.5. ओके, एंड कम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी? सुष्मिता पढ़ी हो कम्प्लेक्स नंबर? 3+4J, जहाँ पे जे है ना, जे ऐसे लिखा रहता है. आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 11th क्लास में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स, है ना. फिर क्या है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी वर्ड्स रिटर्न इन, जैसे माई नेम इज, है ना. माई नेम इज रोहन, सोहन, मोहन, है ना. जो भी नाम है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा स्ट्रिंग होगा, है ना, स्ट्रिंग होगा. ठीक है. लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, जैसे कि आप कोई लिस्ट बनाते हो, किसी चीज़ का लिस्ट बनाते हो, खाने पीने का सामान का या कुछ कपड़े का या बुक का, कुछ चीज़ का भी बनाते हो, तो एक लिस्ट भी डेटा टाइप है. हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे. एक क्या है टप्पल, ट्यूपल. ट्यूपल भी लिस्ट की तरह है, स्ट्रिंग की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे. डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी होता है ना. मतलब कि वैल्यू पेयर्स आप ढूंढते हो ना डिक्शनरी में, कि अगर कोई दो वर्ड्स है तो कहाँ मिलेगा. सो सेम लाइक दैट, सो नो वरी. सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट दैट दीज आर द डेटा टाइप्स. आपको अभी क्या करना है, क्लास 10th में, उसके बारे में 11th 12th में पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस में, लेकिन अभी क्या याद रखना है आपको, कि दीज आर द डेटा टाइप्स. बस आपको ये भी याद रखना है. क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर एमसीक्यू अगर क्वेश्चन होता है तो क्या पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा टाइप इन पाइथन. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोला? त्रिशा टेल मी, मैं क्या बोला अभी? Question will be asked like that, which one is data type or not. Okay, so it is clear. Yes, sir. क्लियर ना? ओके, चलिए अभी हम देखेंगे पाइथन्स वेरिएबल्स का रूल देखेंगे, है ना. ये पाइथन्स वेरिएबल्स में कैसे कैसे लिखते हैं, फिर आज का क्लास ओवर करेंगे. जस्ट ए मिनट. ओके, कहाँ गया प्रोग्राम, प्रोग्राम. यस. So the first rule all of you know, there should be no space. It is clear. Yes, sir. और क्या कर सकते हैं, टेल मी. अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, पहला हो गया, है ना, नंबर. फिर लिखते हैं नंबर 1, आपके सामने कर रहा हूँ, नंबर 1 इक्वल टू, अभी लिखता हूँ 99, है ना, ए बी सी. ठीक है, या कुछ भी लिखता हूँ ABC. ठीक है. फिर लिखता हूँ नंबर 2 इक्वल टू, लिखता हूँ SUM सम, है ना. फिर लिखता हूँ नंबर 3 इक्वल टू, है ना, PRINT प्रिंट, है ना. नंबर 4, नंबर 4 इक्वल टू, ठीक है, लिखता हूँ GLOBE ग्लो. ठीक है. ओके. ओके, सो कुछ समझ में आ रहा है, बताइए मुझे यहाँ पे. कैन यू गेस व्हाट इज दैट, क्या क्या होगा? लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, टेल मी.
तो यहाँ पे क्या क्या गलती है बताओ, कि ये नहीं हो सकता या फिर ये नहीं हो सकता है? टेल मी एनीवन, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, बताइए एनीवन। Sir, sir, it should either be integer, float, or complex number, but not ABC. ओके, चलिए देखते हैं, इसको रन कराते हैं पहले। कहाँ कहाँ देखो रन कराते हैं पहले, क्या है ना कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो प्रोग्राम में इसको सेव करो, फिर इसको रन करो, है ना। तो पहला गलती क्या हुआ कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, 99 ABC नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके सामने अगर अल्फ़ाबेट्स है और ये है नंबर है, तो दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ओके, चलो इसको हम चेंज करते हैं, यार 99 को हम हटाते हैं, ठीक है। अभी देखो फाइल में गए, सेव में गए, रन में गए, रन मॉड्यूल, है ना। अभी देखो एबीसी लिख सकते हैं, लेकिन सम, प्रिंट और ग्लोब नहीं लिख सकते हैं। ग्लोब क्या है हमारा, बताओ, टेल मी व्हाट इज ग्लोब। Globe is the keyword, print is the function, sum is the function. Okay, so we cannot use the function in a variable, we cannot use the keyword in a variable, we cannot use the what, combination of number starting and then a string there. Okay, so these are the basic rules, ये आपका basic rules हुआ, ठीक है। अब कोई डाउट है किसी को, बताओ मुझे, एनीवन, अभी क्लियर है? टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. यस। आप इन फ्रंट ऑफ आप यहाँ भी स्पेस नहीं दे सकते हो ना, ये भी स्पेस दोगे तो गलत होगा, ठीक है। बट यू कैन स्टार्ट विद द अंडर स्कोर, आप अंडर स्कोर से इसको स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अंडर स्कोर आप लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ थिंग, यू कैन राइट द अंडर स्कोर। अंडर देखो, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप हैश लिखा, हैश तो ये लिखा, एट द रेट लिखा, है ना, इसको सेव करेंगे, सेव किया, रन किया, ये क्या है, सिंटैक्स एरर आया, ठीक है। बट इन प्लेस ऑफ एट द रेट यू कैन राइट अंडर स्कोर, अंडर स्कोर करेंगे तो देखो क्या होता है, सेव, रन, रन, है ना। ये आपका यहाँ पे एरर नहीं है, आपका एरर यहाँ पे आ रहा है, सम प्रिंट ग्लोब में एरर आ रहा है। गॉट इट माय पॉइंट्स, क्लियर है अभी? सो दिस वे यू कैन राइट वेरिएबल, वेरिएबल सीखने के तरीके हो गए ये सब, सो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। नाउ कम टू द क्लास बैक, सी हियर। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वन से रिवीजन, क्विक रिवीजन, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन पढ़ा, इनपुट फंक्शन पढ़ा, कीवर्ड पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़ लिया, है ना, कमेंट कमेंट पढ़ लिया, एंड अबाउट द पाइथन पढ़ लिया। क्लियर? ओके, एनी डाउट हियर टू एनीवन? टेल मी, नो डाउट? ओके, गुड। So with that, I'm going to end this class now. Okay, if you have any doubt, then please ask me through the WhatsApp or through the comment, whatever you want to write, you can write, and let me know. And with this note, I'm going to end this class. Okay.